Okay, now let us see the next type of equation. Now let us say we have an equation of the form sin x plus cos x comma sin x cos x, where r is again representing a rational function. So अगर हमारे पास ये equation of the form r of sin x plus cos x और r sin x minus cos x comma sin x cos x, तो ऐसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना चाहिए? So the way to solve such equation is you have to substitute sin x plus cos x as t. So the moment I substitute sin x plus cos x as t, so can we write sin x cos x in terms of t? Yes, we can. अब हमें क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, तो I'll have sin square x plus cos square x plus 2 sin x cos x equals to t square, और sin x cos x as t square minus 1 upon 2. So what is this equation now? This would be equals to equivalent to an equation function in the form of t comma t square minus 1 upon t. Perfect. अब हमें instead of solving this we have to solve this equation. इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हमने एक इक्वेशन के टर्म में रिड्यूस कर दिया है. So this is a polynomial equation and we easily know how to solve such polynomial equation. Similarly, अगर sin x minus cos x के टर्म्स में इक्वेशन होती तो हम sin x minus cos x को t सब्स्टिट्यूट कर देते, तो उस केस में sin x cos x की वैल्यू क्या हो जाती? उस केस में sin x cos x would have been 1 minus t square upon 2, because यहाँ जाता sin square x cos square x minus 2 sin x cos x equals to t square. So 1 minus t square upon 2 would have given me sin x comma cos x. तो उस केस में इक्वेशन क्या होती? r of t comma 1 minus t square upon 2. Clear? Very clear? So what do we have? Either sin x plus cos x है तो उसको t है तो reduce the equation to the form of t comma t square by 2 t minus 1 by 2, और अगर sin x minus cos x है के टर्म्स में इक्वेशन है, so we will have sin x cos x as 1 minus t square by 2, इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी. और अभी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं. और अब हमें क्या चीजें देखनी पड़ेगी? हमें देखनी पड़ेगी कि sin x plus cos x की मैक्सिमम वैल्यू होती है √2 और मिनिमम -√2. तो t के वैल्यूज भी -√2 से √2 के बीच में ही आए, एंड सेम केस वुड अप्लाई हियर. परफेक्ट. लेट अस सी एन एग्जांपल बेस्ड अपॉन दिस. क्वेश्चन लिखिए. सो वी हैव टू सॉल्व अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin x plus cos x minus 2√2 sin x cos x equals to 0. हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है sin x plus cos x minus 2√2 sin x cos x equals to 0. So I have an equation for sin x plus cos x minus comma sin x cos x. So we have a rational function in terms of sin x plus cos x and sin x cos x. Okay, so हम ये वाला केस अप्लाई करेंगे and we have to convert it in a rational function of t comma t square minus 1 by 2. So sin x plus cos x, what we will do, we will substitute by t, and what would be sin x into cos x? I know it would be t square minus 1 by 2. Perfect. So this is equals to t square, 2 and 2 would get cancelled, so minus √2 t square minus √2 t square plus √2 equals to 0, or I can write this as √2 t square minus t minus √2 equals to 0. Perfect. Or we can write this as t square minus 1 upon under √2 into t minus 1 equals to 0.
और इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? आई कैन राइट दिस इज टी स्क्वेयर माइनस रूट टू प्लस 1 अपॉन अंडर रूट टू टी माइनस 1 इक्वल्स टू 0. सो इस इक्वेशन के फैक्टर्स हो जाएंगे रूट टू, वी विल हैव टी माइनस रूट टू इंटू टी प्लस 1 अपॉन under root 2 equals to 0. So what we will have t as root 2 or t as minus 1 upon under root 2. So we have got two trigonometric equations here again. First is t, which is equals to sin x plus cos x equals to root 2. Okay, and the other one is sin x plus cos x equals to minus 1 upon under root 2. Perfect. इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है? These are equations of the form a cos theta plus b sin theta equals to c. We know how to solve them. This equation can be written as root 2 sin x plus pi by 4 equals to root 2. Or I can write sin x plus pi by 4 equals to 1 or which is equals to sin pi by 2. यहाँ में से cos के टर्म्स में भी लिख सकते थे the same way around. So this would have been x plus pi by 4 equals to n pi plus minus 1 to the power n pi by 2, or sin x plus cos x equals to minus 1 upon under root 2. So we have root 2, इसको हम cos के टर्म्स में देख लेते हैं. So cos x minus pi by 4 will be equals to minus 1 upon 2. रूट 2 अगर मैं यहाँ ट्रांसफर कर दूँ, which is equals to cos pi minus pi by 6, which is 5 pi by 6. So x minus pi by 4 from here would be 2n pi plus minus pi by 6. So इन दोनों solutions का union is going to be the solution for our this differential equation. समझ में आया क्वेश्चन? इजी था. अगर हमें ये ट्रिक्स पता हो, इफ वी नो कि इक्वेशन फॉल्स इन विच स्टैंडर्ड फॉर्म और उस स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आइडेंटिफाइंग द स्टैंडर्ड फॉर्म, और समटाइम इक्वेशंस आर डायरेक्टली नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, दे आर रिड्यूसिबल टू दैट फॉर्म. ऐसे क्वेश्चन हम शीट डिस्कस करते टाइम देखेंगे. सो वी शुड नो हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. ओके, now let us start the next topic, or I'll see the next form of equation, that is simultaneous equations. अभी तक क्या था? हमारे पास एक ही इक्वेशन थी और एक ही वेरिएबल था, ठीक है, हम उसे ही सॉल्व कर रहे थे. अब कुछ ऐसे केसेस भी आ सकते हैं जब एक वेरिएबल दो इक्वेशंस में लाई कर रहा है. सो हम उस केस को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. या फिर दो वेरिएबल्स दो इक्वेशन में लाई कर रहे हैं, तो उन केसेस को कैसे सेटिस्फाई करना है. Okay, so let us see how to solve simultaneous equations now. We will be seeing two type of equations here. The first type of equation that we will be seeing is two equations satisfied in one unknown simultaneously. And the other would be two equations satisfied in two unknowns simultaneously. I hope these lines are self-explanatory to explain what are we going to do.
सो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन होगी. लेट अस से वन इक्वेशन इज sin x plus cos x equals to 0 and the other is sin x minus cos x equals to pi by 4, okay, equals to 1 by 2. Okay, so these are the two equations that we will be having. Now what we have to do is हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करती हो. इसी का मतलब होता है two equations in one unknown simultaneous, that is both the equations are having one variable. For example, let us say one equation is sin x equals to 1 and the other equation is cos x equals to 0. Okay, so let us take an example. Sin x equals to 1 and cos x equals to 0. So these are two equations but having one variable x. तो हमें ऐसी x की वैल्यूज निकालनी है जो दोनों को सेटिस्फाई करे. अब sin x equals to 1 से हमें मिलेगी pi by 2, 5 pi by 2, 9 pi by 2 and so on. और cos x equals to 0 से हमें मिलेगी pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, 9 pi by 2 and so on. So what we will do is कि अब हम 3 pi by 2, 7 pi by 2 वाली टर्म्स को एलिमिनेट कर देंगे कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को नहीं सेटिस्फाई करेगी. सो द ओनली सोल्यूशन वुड बी pi by 2, 5 pi by 2, 9 pi by 2 and so on. So did you understand the main point? The main point is कि दोनों इक्वेशन में एक ही कॉमन वेरिएबल है और हमें वो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है जो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे. द नेक्स्ट इज two equations and two unknowns simultaneously. Now the equations would be of two variables. Let us say an equation of the form sin x plus y equals to 1 and cos x minus y equals to 0. ठीक है. Now हमें x और y की वो वैल्यूज निकालनी जो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करें. What I want now is कि x और y की जो वैल्यूज हैं अब ये दोनों इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करें, सेटिस्फाई करें. ठीक है, हमें x और y की वो वैल्यूज निकालनी है. गॉट इट? व्हाट डू वी मीन बाय two equations and one unknown simultaneous? There is just one variable which is there in two equations and the next is two equations and two unknown simultaneous. So the equations are having two variables and these should satisfy the two equations. इन्हें एक examples की समस्या समझने की कोशिश करते हैं. Let us say we have a equation which says we have to find the most general value of theta satisfying sin theta minus 1 by 2 and tan theta as 1 upon root 3. ठीक है. So हमें वो most general solution पता करना है for theta which satisfies the equation sin theta is minus 1 by 2 and tan theta is 1 upon root 3. तो एक काम करते हैं, पहले तो दोनों के इंडिविजुअल सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं फिर उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे. ओके, सो व्हेन आई राइट sin theta as minus 1 upon 2, so I can write this as sin either sin, हम जानते हैं फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है. तो यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो साइन पाई प्लस पाई बाई 6 और साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6. ठीक है, ये मैंने फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू लिख दी और ये मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने वाली वैल्यू लिख दी. सो दिस इज 7 पाई बाई 6 and here I have 11 pi by 6. So 7 pi by 6 and 11 pi by 6 are the two values satisfying this equation. Now let us have tan theta as 1 upon under root 3. So this would be either tan pi by 6, okay, or tan pi plus pi by 6. बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में भी tan पॉजिटिव होता है. तो यहां से हमें थीटा की दो वैल्यूज क्या मिली, यहां से हमें थीटा की एक वैल्यू तो मिली पाई बाई 6 और दूसरी वैल्यू मिली 7 पाई बाई 6. ठीक है, ट्रू. नाउ फर्स्ट इक्वेशन में थीटा की वैल्यू है पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6
और सेकेंड इक्वेशन में थीटा की वैल्यू है π/6 और 7π/6, तो दोनों के बीच में कॉमन वैल्यू क्या है? दोनों के बीच में कॉमन वैल्यू है 7π/6. तो 7π/6 इज द जनरल वैल्यू विच इज सैटिस्फाइंग द टू इक्वेशंस. तो जनरल वैल्यू सोल्यूशन क्या हो जाएगा इस तरीके से 7π/6 also 2nπ plus 7π/6. This is going to be the general solution for two equations. समझ में आया क्या किया हमने? पहले इस इक्वेशन का प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल दिया. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालते हैं और उस पर 2nπ का फैक्टर ऐड कर देते हैं. ओके, पहले हमने sin थीटा इक्वल्स टू -1/2 के दो प्रिंसिपल सोल्यूशंस निकाले, 7π/6 और 11π/6. फिर हमने tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3 के दो प्रिंसिपल सोल्यूशंस निकाल दिए, π/6 एंड 7π/6. इन दोनों का बीच का कॉमन सोल्यूशन क्या है? इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन और ऐसे यूनियन, इन दोनों का यूनियन, सॉरी नॉट यूनियन, इंटरसेक्शन. इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? इट इज 7π/6 एंड दैट इज द जनरल सोल्यूशन सैटिस्फाइंग बोथ द टू इक्वेशंस. याद रखिए हम यूनियन नहीं इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, बिकॉज हम चाहते हैं ऐसी, क्योंकि यहाँ पे एंड है which is satisfying the two. और होता तो यूनियन निकालते, but it is and which is satisfying the two together, so it has to be the intersection of two which is 7π/6. और इसमें हमने 2nπ का फैक्टर ऐड कर दिया. क्लियर है? So this is how we solve equations with one unknown. Okay, इस तरीके के और क्वेश्चंस हम शीट में सॉल्व करेंगे. What we are doing right now is हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं और हम एक एक एग्जाम इलस्ट्रेशन से समझते जा रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना है. इसमें सही अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स हम शीट डिस्कशन में ही स्टार्ट करेंगे. नाउ आई फील ऑलमोस्ट द थ्योरी इज गोना एंड टुडे. फ्रॉम टुमारो वी विल बी बिगिनिंग विद शीट डिस्कशन. ओके, नाउ नेक्स्ट let us see a question based upon two equations with two unknowns simultaneously. Okay, question लिखिए. क्वेश्चन है tan a minus b is 1 and sec a plus b is 2/√3. Find the smallest positive values of a and b and their most general solution. What are they telling is smallest positive values of a and b. Emphasize the word is positive. So we have tan a minus b as 1 and sec a plus b (2/√3). ठीक है, इन दोनों के लिए हमें सबसे पहले तो मोस्ट लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है ए एंड बी की जो इन्हें सेटिस्फाई करे, और फिर इनके लिए जनरल सोल्यूशन भी निकालना है. ओके, सबसे पहले देखते हैं tan a minus b equals to 1. tan दो ही क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड. So this would be either tan π/4 or tan pi plus π/4 which is 5π/4. So यहाँ से हमें a minus b की दो वैल्यूज मिली. It is either π/4 और 5π/. ठीक है, अब sec a plus b, sec a plus b is 2/√3 which would be either sec π/6 बिकॉज यहाँ से हुआ cos a plus b is √3/2 और ऐसा कब होता है 30 डिग्री एंगल के लिए. सो वी हैव ईदर sec π/6 और 2π minus π/6 which is 11π/6. सो यहाँ से a minus a plus b की दो वैल्यूज मिली, π/6 और 11π/6. अब a माइनस बी की भी दो वैल्यूज मिल गई और a प्लस बी की भी दो वैल्यूज मिल गई. अब ये समझना है कि कौन सी वैल्यूज रखनी है और कौन सी एलिमिनेट करनी है. ओके, और हमारे पास क्राइटेरिया में एंड है, तो इन दोनों इक्वेशंस को ही साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें रिजल्ट मिलेगा. ये भी हम समझ रहे हैं. अब देखिए क्वेश्चन में दिया है कि a और b पॉजिटिव है. ठीक है, बिकॉज हमें पता करना है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ a और b, एंड सिंस a एंड b आर बोथ पॉजिटिव आई कैन राइट a प्लस b वुड बी ग्रेटर देन a माइनस बी. क्योंकि a और b पॉजिटिव है तो a प्लस बी को a माइनस बी से तो बड़ा होना ही पड़ेगा. वी अंडरस्टैंड दिस. अब a प्लस बी की वैल्यूज देखिए. पहली वैल्यू है 30 डिग्रीज. 30 डिग्री ये है 45 डिग्रीज और ये है 180 प्लस 45 डिग्रीज.
गॉट इट, दिस इज 225 डिग्रीज. ओके, अब देखिए ये है 30 डिग्रीज विच इज नीदर, इट इज नॉट ग्रेटर देन 45 डिग्रीज एंड इट इज नॉट इवन ग्रेटर देन 225 डिग्रीज. तो मतलब ये वैल्यू तो हमको एलिमिनेट करनी ही पड़ेगी. ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू इज 11 पाई बाय 6. 11 pi by 6 is what? 2 pi minus 45 degrees and it has to be greater than a minus b. Okay, so 11 pi by 6 is what? 360 minus 45 degrees. Okay, this is pi by 45 degrees. इससे तो बड़ा है ही. And what is 5 pi by 4? It is 360 minus 30 degrees. Sorry, I committed a mistake. A plus b is, the two values of a plus b that we got was pi by 6 and 11 pi by 6. This is 360 minus 30 degrees. And this is 360 minus 45 degrees. Okay, so 11 pi by 6, it is greater than 45 degrees and it is given, it is greater than 360 minus 45 degrees which is 315 degrees. मतलब a plus b की तो हमें एक ही वैल्यू मिली, इस वैल्यू को तो हम एलिमिनेट कर चुके. So a plus b has just one value 11 pi by 6, but a minus b can take two values. That is, first value would be pi by 4 and the second value would be 5 pi by 4. So पहले pi by 4 लेके a और b की वैल्यूज निकालते थे, फिर a minus b को 5 pi by 4 लेके दोनों वैल्यूज निकालते हैं. ओके, so let us first take a plus b as 11 pi by 6 and a minus b as pi by 4. So यहाँ से मुझे मिलेगा 2a as 11 pi by 6, or let me write it as 330 degrees plus 45 degrees, or a as 330 plus 45 divided by 2, which would be 375 divided by 2, and b would be 330, b would be 375 by 2 minus 330 degrees, और minus 375 by 2 plus 330 degrees. ठीक है, और दूसरा सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? we'll put again a plus b as 330 degrees and a minus b as 315 degrees. so यहाँ से हमें 2a की वैल्यू मिल जाएगी 645 divided by 2 and 2b की वैल्यू मिल जाएगी 15 divided by. So whatever set of values we will get, we are going to get two set of positive values here. एक जो यहाँ से मिलेगी और एक जो यहाँ से मिलेगी. So basically we are going to get two set of values which are going to satisfy these two equation. इसके अलावा अगर हमें क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन दे देते कि a और b they are just lie between 0 to 3 pi by 2 या फिर 2 pi to 3 pi by 2, कुछ भी ऐसी रेंज देते तो उसके बेसिस पे शायद हम यहाँ से कुछ और वैल्यूज भी एलिमिनेट कर पाते. समझे? सो बेस्ड अपॉन व्हाट आर द कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन वी वुड बी एलिमिनेटिंग वैल्यूज. बट अगर इस तरीके की कंडीशन दी हूँ तो ये एक क्राइटेरिया है जो हम कंसिडर कर सकते हैं. अगर पॉजिटिव वैल्यूज हो तो वी शुड ऑलवेज सी कि दोनों का सम शुड बी ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ द टू एंगल्स. क्वेश्चन क्लियर है? और जनरल वैल्यूज के लिए क्या करेंगे? 2 and pi प्लस द smallest values that we have got. I hope this is clear to everyone. How to solve simultaneous equations with one variable and how to solve simultaneous equation with two variables in them. Perfectly clear? Okay. So आज what we have done till now is we have seen how to solve most of the different types of trigonometric equation. इसके बाद जो next topic हमें start करना है that is trigonometric inequations. Trigonometric inequation से आप क्या समझते हैं? अगर मैं नॉर्मल इनइक्वालिटी की इक्वेशन कहूं तो हम क्या समझते हैं? पहले मुझे ये बताइए.
जल्दी से बताइए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन। इक्वेशन से तो हम समझते हैं कि इट इज अ नॉर्मल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इन इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन? It is an inequality equation having trigonometric function of variables. Inequality equations कैसी होती है? x greater than 1 by 2, x plus y less than 1 by 2. ऐसी हम इन equations को हम बोलते हैं इन equations. और trigonometric इन equations कुछ इस तरीके की हो जाएगी. For example, let us say I have an equation sin x greater than 1 by 2 or cos x less than minus 1 by 2. So all such equations are trigonometric in equations. In equations involving trigonometric functions of variables are called as trigonometric in equations. अब इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए? जिस तरह से हम नॉर्मल इन इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी के तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशंस भी सॉल्व करेंगे. ओके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जल्दी से. फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स ग्रेटर देन 1 by 2. अगर मुझे इस इन इक्वेशन का रिजल्ट निकालना है तो मैं क्या लिखूंगी? ये क्या चाहते हैं? व्हाट आई वांट, दे वांट मी टू राइट फॉर सॉल्व इज साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1 by 2. मुझे एक्स की वो वैल्यूज निकालनी है जिनके लिए साइन एक्स की वैल्यू 1 by 2 से ज्यादा हो. इसी को कंपेयर कीजिए एक इन इक्वेशन से y ग्रेटर देन 1 by 2. ओके y ग्रेटर देन 1 by 2 को मैं किस तरह से प्लॉट करती हूं? ठीक है, when I say y greater than 1 by 2, so this is y equals to 1 by 2. so मैं कहती हूं इस लाइन के ऊपर का जो भी एरिया है it satisfies this in equation y equals to 1 by 2. ठीक है, यहां पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. सिमिलरली अगर sin x ग्रेटर देन 1 by 2 निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? वील प्लॉट अ ग्राफ फॉर sin x. See, I'll tell you this is the most easiest way and the most accurate way to solve trigonometric in equations. ठीक है, ग्राफिकली अगर सॉल्व करेंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे. मैथमेटिकली सॉल्व करने का तरीका भी मैं बताऊंगी, लेकिन उसमें कभी कभी गलतियां करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है. बट विद ग्राफ इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी. ओके, सो लेट अस प्लॉट द ग्राफ फॉर sin x. ठीक है, sin x ग्रेटर देन 1 by 2 और sin x 1 by 2 का होता है. आई नो इट इज 30 degrees that sin x is 1 by 2. Okay, so this value would be 30 degrees here and this value would be 150 degrees here. इन दो वैल्यूज पे sin x 1 by 2 होगा और हम चाहते हैं, and this is my line, y equals to 1 by 2. हम चाहते हैं वो एरिया जिसमें sin x 1 by 2 से बड़ा हो. So what is this? This is this area. That is x lying between pi by 6 to 5 pi by 6. ओपन इंटरवल क्योंकि ग्रेटर देन दिया है, इक्वल्स टू दिया होता तो मैं क्लोज्ड इंटरवल ले लेती. सो pi by 6 to 5 pi by 6 इज द एरिया. और अगर जनरल लिखना होगा सोल्यूशन निकालो तो 2n pi plus 5 by 6 to 2n pi plus 5 pi by 6. सिमिलरली अगर हमें ऐसी इक्वेशन सॉल्व करनी है cos x लेस देन माइनस 1 by 2, अब क्या करेंगे? हम cos x का ग्राफ प्लॉट करेंगे. ठीक है, okay, so I know this is the curve for cos x and we want to find the region in which cos x is less than minus 1 by 2. so मुझे बताइए cos x की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? I know फर्स्ट और सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू नेगेटिव होती है. so एक तो minus 1 by 2 वैल्यू यहाँ होगी which would be pi plus 30 degree, pi plus 60 degrees because cos x 1 by 2 gives me x as 60 degrees. So one would be 180 plus 60 degrees which is 240 degrees and the other value would be at 180 plus 60 degrees again. Okay, one would be, the other value would be at 360 minus 60 degrees which is at 300 degrees.
यहाँ पे cos x की वैल्यू हो जाएगी -1/2 ऑन लेट अस प्लॉट y इक्वल्स टू -1/2। हम चाहते हैं कि cos x शुड बी लेस देन -1/2, मतलब y इक्वल्स टू -1/2 से नीचे का एरिया, विच मीन्स दिस एरिया। Between 240 to 300 lies the region in which cos x is less than -1/2, और अगर जनरल सोल्यूशन निकालोगे तो 2n pi plus 360 plus 240 degrees and 360 plus 300 degrees. So basically this is the general way जिससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस सॉल्व करते हैं। मतलब मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस का सोल्यूशन बताया, इसकी जगह हमें कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशंस भी हो सकते थे। फॉर एग्जांपल हमें मिल जाती इक्वेशन ऑफ द फॉर्म cos x प्लस साइन एक्स लेस दैन 1। अब बताइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इससे मैं क्या लिख देती, इसे मैं लिख देती √2 लेट अस से साइन x प्लस π/4 लेस दैन 1 और साइन x प्लस π/4 लेस दैन 1/√2। एंड व्हाट आर द रीजंस इन विच sin x प्लस π/4 वुड बी लेस देन 1/√2? ये देखिए 1/√2 कहाँ पे होगा? एक तो 45 डिग्रीज पे दैट इज π/4 और दूसरा होगा pi माइनस π/4 दैट इज 3π/4। सो 0 to π/4 यूनियन 3π/4 to 2π। I know my x plus π/4 is going to be less than 1/√2. This is for x plus π/4 which means x की रेंज क्या आ जाएगी? -π/4 to 0 यूनियन 3π/4 minus π/4 which is pi, 2π minus π/4. So this is the range for x. समझ में आया? तो सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व होंगे, बस डिफरेंस अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सो जितने भी मेथड्स हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज किए थे वो इनडायरेक्टली यही अप्लाई होंगे। फॉर एग्जांपल इसकी जगह होता है sin x प्लस cos x, sin x cos x, तो हम फिर t यूज करके एक इनइक्वेशन बना लेते, नॉर्मल इनइक्वेशन बना लेते और उसको सॉल्व करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के जितने भी तरीके थे सेम यही अप्लाई होंगे, बस अब उसको एक इनइक्वेशन बनाना है और उसके फॉर्म में सॉल्व करना है। हम नॉर्मल इनइक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान है, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को नॉर्मल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी तरीके से हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन को भी नॉर्मल इनइक्वेशन में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करेंगे। बस वही जो फैक्टर्स हमने तब कंसिडर कर रहे थे इक्वेशन के टाइम पे उन्हें ही वापस से कंसिडर करेंगे। सो व्हाट वी विल डू नाउ इज ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन, I mean I'll say there is not much of theory to cover, वो हम ऑलरेडी इक्वेशंस में कवर कर ही चुके हैं। सो कल से हम शीट डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। लेट अस टेक द शीट ऑफ इक्वेशंस एंड इक्वेशंस, लेट अस सॉल्व इट, बिकॉज जब शीट सॉल्व करेंगे तभी हम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को ज्यादा समझ पाएंगे एंड उसी के थ्रू हम इन इक्वेशंस पे भी अच्छी ग्रिप बनाएंगे। सो कल से शीट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप शीट पहले से देख लीजिए और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए ताकि हमें अच्छा कंफर्ट लेवल आएगा जब हम उसे क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, कल से हम हमारा शीट डिस्कशन स्टार्ट कर लेंगे। ओके, बाय बाय।